اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کے کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خاکسار کا پروگرام تو ایک اور موضوع پہ ویڈیو بنانے کا تھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو بائبل میں یسوع مسیح کے نام سے پکارا گیا ہے، ان کے متعلق کوئی پیش گوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں عہد نامہ قدیم میں ہے، جیسا کہ مسیحی حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صلیب پر فوت ہوں گے۔ تو جہاں تک خاکسار کی تحقیق ہے، کوئی ایک بھی پیش گوئی نہیں، بلکہ ایسی پیش گوئیاں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صلیب سے بچائے گا۔ اس موضوع پہ کچھ میں پروگرام بنانا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران ایک ہمارے عزیز دوست ہیں واٹسن گل صاحب، جو مسیحی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور غالباً ہالینڈ میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس کا ہیڈنگ تھا A false claim of use of a false claim۔ تو وہ تقریباً ایک مہینہ سے مختلف چینلز پر شور مچا رہے تھے کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے مسیح ہندوستان کے متعلق کسی احمدی سے، اور میں نے ایک مہینہ پہلے ان کو کہا کہ مجھے یہ آپ کا چیلنج قبول ہے، آپ تشریف لائیں اور بات کریں۔ لیکن باوجود بار بار یاد دہانی کے انہوں نے ابھی تک ایک لفظ بھی جو ہے وہ مسیح ہندوستان کے متعلق کوئی اعتراض پیش نہیں کیا، سوائے ایک ہلکا سا انہوں نے پروگرام مجھے بھیجا تھا جو کسی ٹی وی چینل میں انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا، لیکن اس میں بھی جو اصل مندرجات ہیں مسیح ہندوستان میں، یہ وہ کتاب ہے، اس پر کوئی انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان نہیں کیا، یعنی اصل مندرجات جو ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے جو آغاز کیا اس ویڈیو میں جو انہوں نے میری بھیجی ہے، وہ انشاءاللہ میں کسی وقت دکھاؤں گا آپ کو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، The False Claim, A Use of False Claim، یہ اس کا ہیڈنگ ہے، یوٹیوب میں وہ موجود ہے، کوئی دوست بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع انہوں نے یہ کیا کہ جی مرزا صاحب نے بہت جھوٹ بولے ہیں۔ تو پہلے تو میں نے ان کو جواباً کہا کہ مجھے بتائیں کہاں کہاں انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، لیکن ابھی تک تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بار بار یاد دہانی کروانے کی بھی۔ لیکن پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ بائبل میں جو بزرگ ہیں، ان کے سب سے زیادہ کتابیں پولوس رسول کی ہیں بائبل میں، جو کہ اس عقیدہ کا موجد ہے۔ کس عقیدہ کا؟ کہ مسیح جو ہے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر فوت ہوا، اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اس نے قربانی دی، جیسا کہ لکھا ہے اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ نہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا۔ ایک تو یہاں سر راہ یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں، خدا مسیح کو جلا رہا ہے، مسیح میں کوئی خدائی نہیں ہے، وہ اقرار کر رہے ہیں، حالانکہ نہیں جلایا۔ 1 کرنتھیون باب 15 آیت 14-15، یہ وہ کتاب ہے، یعنی کرنتھیون کی جو خط ہے، یہ اناجیل سے بھی بہت پہلے، کوئی 10 15 20 سال پہلے، کیونکہ مختلف ان کی جو ڈیٹس ہیں وہ مختلف ہیں۔ بہرحال ان کے مطابق یہ سن 50 میں لکھا گیا ہے، اور اناجیل وغیرہ جو ہیں
वो 60 से भी बाद लिखी गई हैं, बल्कि यूहन्ना की इंजील तो तस्लीम करते हैं खुद मसीही हजरात के सन 100 में लिखी गई है। तो बहरहाल ये उस अकीदा का मूजद है शख्स कि मसीह सलीब पर फौत हुआ और जी उठा। अब मैं खुद मसीह का पौलुस रसूल का जो इकरार है कि मैं खुदा की सच्चाई के लिए झूठ भी बोलता हूँ, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। खुद उनका अपना इकरार है, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे उनकी तरह। और जब हम सबूत दे रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने झूठ नहीं बोले, बल्कि तुम्हारे जो अपने बुजुर्ग हैं पौलुस रसूल वो इकरार कर रहे हैं, तो जब मुजरम खुद इकरार करे तो फिर सबूत की ज़रूरत नहीं होती। लिखा है, रूमियों का ख़त है जो अमाल की किताब की से बाद पहली किताब है, यानी रूमियों का ख़त, बाब 3 है, आयत नंबर 7 है। नोट फरमा लें फिर। मोहतरम वाटसन गिल साहब, आप हवाले नहीं देते, मैं आपको हवाले दे रहा हूँ। रूमियों का ख़त बाब 3 आयत 7। पौलुस साहब फरमाते हैं कि अगर मेरे झूठ के सबब से खुदाई की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते ज़्यादा जाहिर होती है, तो फिर क्यों गुनाहगार की तरह मुझ पर हुक्म दिया जाता है। अब उनको ये भी इतराज़ है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे गुनाहगार भी ना कहो, और हम क्यों बुराई ना करें ताकि भलाई पैदा हो। अब वो कौन सा सच है जिसके लिए झूठ की ज़रूरत पेश आती है? क्या वो भी कोई सच हो सकता है जिसकी इब्तदाई झूठ से हो? क्योंकि यीशु मसीह खुद फरमाते हैं, यूहन्ना का बाब 8 है, आयत नंबर 44, झूठ के मुतल्लिक़ देखें कितनी सख्त उनके अल्फाज हैं। वो फरमाते हैं यहूदियों को मुखातब करते हुए अपने मुखालिफिन को कि तुम अपने बाप इबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू से ही सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। वो फरमा रहे हैं कि जो मूजद है झूठ का वो शैतान है, और जो झूठ बोले वो उन इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करने वाले हैं। तो खुद इंजील के मुताबिक और न्यू टेस्टामेंट की किताबों के मुताबिक क्या साबित हुआ कि पौलुस जो है वो इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करने वाला है, और उसका बाप इब्लीस है। ये भी यहूदी था और सख्त मुखालिफ था मसीहियत का। तो बहरहाल अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या झूठ बोले हैं। ये तो वो खुद इकरार करते हैं कि मैं खुदा की सच्चाई को साबित करने के लिए झूठ भी बोल लेता हूं, लेकिन अब मजीद हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि वो झूठ सिर्फ बोलने का इकरार ही नहीं करते, बल्कि उन्होंने झूठ बाकायदा बोले हैं। करंथियों की खत, पहला करंथियों का खत बाब 15 आयत नंबर 3 से 8। करंथियों का पहला खत बाब 15 आयत 3 से लेकर 8 तक लिखा है, जब झूठ उनके सुने, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मोआ। कहीं भी किताब मुकद्दस में ये पेशगोई मौजूद नहीं है। किताब मुकद्दस जब लिखते हैं न्यू टेस्टामेंट के राइटर, तो उससे मुराद अहदनामा कदीम होता है, क्योंकि ये तो इब्तदाई किताबें हैं करंथियों जो न्यू टेस्टामेंट में शामिल हैं और जो लिखी गई हैं। इससे पहले शायद इसी का एक ख़त है पौलुस का ही, गलातियों का। इख्तलाफात हैं इस पर भी, कोई कहता है ये डेट है, कोई कहता है वो डेट है, लेकिन बहरहाल उस वक़्त अनाजील वगैरह नहीं लिखी गई थी। इसलिए किताब मुकद्दस से मुराद हमेशा जब कहा जाता है तो ओल्ड टेस्टामेंट होता है। किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। कहीं कोई ऐसी पेशगोई नहीं है कि मसीह जो है वो दूसरों के गुनाहों के लिए मरेगा और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। कहीं कोई पेशगोई नहीं है कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। पूरी ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ जाएं। दूसरा झूठ, और
जी उठा और कैफा का और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। यहां उसने सबसे पहले कैफा का यानी पतरस का जिक्र किया है, हालांकि सबसे पहले मरियम मगदलीनी को वो दिखाई दिए थे। चारों अनाजील इस पे मुत्तफिक हैं कि सबसे पहले जो मुलाकात हुई वो मरियम मगदलीनी से थी, मगर चूंकि इसी जो 14वें बाब के आखिर में पता चलता है कि ये औरतों के पौलुस बहुत ही सख्त दुश्मन थे, औरतों को तज़हीक की निगाह से देखते थे। उन्होंने लिखा है कि औरत का ये काम नहीं है कि चर्च में आके यानी गैदरिंग में आके जमात में आके वो कोई बात करे। अगर उसने कोई बात करनी है, कोई पूछनी है, पूछने की भी इजाज़त नहीं है तो घर में जाके अपने खावंद से पूछे। तो इसलिए गालिबन बाद लोगों का यह ख्याल है कि इसलिए उसने मरियम मगदलीनी का नाम नहीं लिया, लेकिन बहरहाल ये कहना कि सबसे पहले कैफा को नजर आया है ये भी झूठ है। सबसे पहले मरियम मगदलीनी को अनाजील के मुताबिक दिखाई दिया और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, ये भी झूठ है। 12 थे ही नहीं, 11 थे, क्योंकि यहूदा जो है वो तो उसने तो मसीह को बेचा था रिश्वत लेकर, वो तो पहले ही 12 में से निकल गया था, फिर 12 कैसे हो सकते हैं? ये भी झूठ है कि 12 को दिखाई दिया था। अगर दिखाई दिया था तो 11 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। कोई ऐसी तारीखी रवायत नहीं मिलती, ना अनाजील में ना पूरी न्यू टेस्टामेंट में, कि 500 भाइयों को इकट्ठा दिखाई दिया। कहां लिखा हुआ है? कोई रवायत, कोई तारीखी सबूत कोई नहीं है। और फिर यकूब को दिखाई दिया। यकूब के मुतल्लिक तो बाइबल कहती है कि वो ईमान ही नहीं लाए थे। ये न्यू टेस्टामेंट से ये साबित होता है कि उनकी माँ मसीह की और उनके भाई जो थे वो ईमान ही नहीं लाए थे। तो यकूब को कहां दिखाई दिया? कोई जिक्र नहीं मिलता पूरी अनाजील में कि वो यकूब को दिखाई दिया। फिर सब रसूलों को। तो ये इतने झूठ बोले हैं, 2 तो किताबें मुकद्दस पे झूठ बोले हैं और फिर ये झूठ बोला है कि कैफा को